व्हेन इन केरला ईट लाइक अ केरलाइट। और हम लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ के लोकल ब्रेकफास्ट स्प्रेड से, जिसमें हमारे पास इडली है पोड़ी और घी के साथ, कोकोनट चटनी, सांभर, सेमिया बिरयानी और कोड़ी कटा, अपम है, वेज स्ट्यू है। आइए अब इसका जायका लिया जाए। शुरुआत अपम से करते हैं। जो अपम है वो फर्मेंटेड राइस फ्लावर के बैटर से बनाया जाता है। हल्का सा एक खट्टापन उसमें आएगा। और जो वेजिटेबल स्ट्यू है उसमें अलग अलग सब्जियां हैं, जैसे मटर हो गया, गाजर हो गया, गोभी हो गई, और ये कोकोनट मिल्क में बनाया जाता है। तो अच्छा एक आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट। और ये जो अपम है अच्छे से कोकोनट मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेता है। साइड से बिल्कुल क्रिस्प है और बीच से बिल्कुल डेंस और फ्लफ़ी। सेमिया बिरयानी मतलब सेमिया को सब्जियों के साथ में हल्का फ्राई किया गया है। ये कोड़ी कटा जो कि राइस फ्लावर और कोकोनट मिला के डम्पलिंग्स बनाए गए, स्टीम डम्पलिंग्स है। तो आपको यहाँ पे हर डिश में राइस एज अ मेन इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा, चाहे वो कोड़ी कटा हो, इडली हो या अपम हो। और पूरा का पूरा साउथ इंडिया ही, चाहे वो केरला हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो, अपने ब्रेकफास्ट के लिए जाना जाता है, अपने ब्रेकफास्ट डिशेस के लिए जाना जाता है। बहुत ही उम्दा इडली बनी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी। और जो ऊपर से पोड़ी डाला है उसका अच्छा एक क्रंचीनेस भी आ रहा है, स्पाइसीनेस भी आ रहा है। और जो यहाँ की लोकल घी है उसके साथ तो बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये प्लेन इडली नहीं है, इसमें सब्जियाँ भी हैं। इसमें ऐसे कैरेट्स हो गए, बीन्स हो गए, सब मिला के बनाया गया। सांभर में एक अच्छा एक स्वीटनेस है और खूब सारी सब्जियां भी हैं। इस चाय बनाने के बर्तन में नीचे में गर्म पानी है, ऊपर में दूध है और भाप से ये दूध गर्म हो रहा है, ये खौल रहा है। ये जो छन्नी है इसमें चाय पत्ती है और इसी से गर्म पानी लेते हैं। चाय पत्ती उसमें घुलती रहती है, पकती रहती है। उसके बाद उसको दूध में फेंटते हैं और फिर आपकी चाय तैयार हो जाती है। Ministry of Rural Development and Kudumbashree Mission of Government of Kerala are jointly conducting this national workshop on food sector enterprise called Culinary Converse. So this is basically an attempt to bring all the state rural livelihood missions together under the umbrella of ministry and discuss how best food sector enterprise can emerge in the coming years. So we have multiple sessions here on branding and marketing, on technology, on financing, on certification. So all the aspects which can be covered under the food sector enterprises, or all the issues which food sector enterprises are facing today. A kind of discussion on those issues and finding out a solution how best we can approach to that. The venue is chosen because as we know, Kudumbashree has been in this field for last 25 years, and Kudumbashree has started multiple initiatives in food sector called Cafe Kudumbashree, Pink Kiosk, Janaki Hotels, and all other initiatives. And now Kudumbashree is working on premium cafe concept. So this is also an attempt to showcase how sustainable and how growth oriented enterprises can be started, how the SHG women can be linked to it to develop it as an employment option, as a income generation option,
and how these efforts can be continued to provide the enough support in this sector. So we have many experts coming in who are talking about marketing issues, who are talking about branding issues, and also the successful models which have been tried. So we have video presentations, we have panel discussions on these aspects. So I'm really happy that Ministry has taken this initiative to organize this, and Kudumbashree NRO is supporting this event. And also we have, as part of this event, we had visit to IHM City Kovalam, how IHM cities can provide the support in this. And also we have a live food streets experience and live restaurant experience, how the technology can help in running a restaurant. So I'm very happy that all these discussions are coming on, and obviously, like in the coming years, in coming 1 or 2 years or 3 years, all these suggestions or all these discussions will become the policy point where states can take a lead and form the opinions or form the strategies in this sector. Thank you. ये हमारा प्रॉपर केरला लंच, जिसमें कर्ड राइस, बॉइल्ड राइस, मालाबारी बिरयानी, ट्रैवनकोर फिश करी, मुर्ग जलफ्रेजी। अब हम लोग मीठे की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास बनाना पायसम है, इसमें गुड़ डाल के बनाया गया है इसे, पम्पकिन हलवा है और बटर स्कॉच पुडिंग है। आइए पहले पायसम से शुरू करते हैं। और पायसम की भी केरला में इतनी सारी वैरायटी है अलग अलग। सुपर स्वीट और इलायची का बहुत ही उम्दा जायका है। ये पम्पकिन हलवा, वाह। ये बटर स्कॉच पुडिंग, इसका जो बेस है वो सूजी है, सेमेलिना, काफ़ी ग्रेनी है, डेंस है और सुपर स्वीट है और अच्छा सा बटर स्कॉच का इसमें स्लाइट फ्लेवर है। अब हमारा लंच ख़त्म हुआ, अब हमारा इसके बाद सेशन है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बारे में। आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस है वो मैं लोगों से साझा करूँगा, शेयर करूँगा और बताऊँगा किस तरह से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासकर जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग, और अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। I'm the only one in the panel as a content creator. So I think we need to first talk about the digital data in India. How many internet users are in India? According to a report by Information and Broadcasting Ministry, India has over 1.2 billion mobile phone users and 600 million smartphone users. And secondly, mobile internet has been such a positive development in country's digital progress. In 2019, over 73% of India's total web traffic were coming from mobile phones. Thirdly, this penetration of smartphones has resulted in users consuming a lot of content from their mobile, online from their mobile. On a smartphone, about every person, they spend almost 4.8 hours every day. On average, you can say almost 5 hours every day just scrolling their phone. Founder of Dairy Food Box. Thank you. Thank you. सो बेसिकली आप जैसे वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये फूड सर्विसेज को लेकर वर्कशॉप है एंड इसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है कि SRLMs जो यहाँ के पार्टिसिपेंट्स हैं वो समझे कि असली तरीके से लाइक व्हाट इज़ द राइट वे टू एस्टैब्लिश अ फूड एंटरप्राइज
एंड क्योंकि ये एसएचजीज़ के साथ काम करते हैं जो रूरल लेवल के हैं, तो काफ़ी एफर्ट्स उनके स्टैंडर्डाइजेशन में स्टाफ के लेवल पे एंड पॉलिसी लेवल पे जाना होता है। तो ये हम एक डेमो कैंटीन सेटअप किए हैं टू द पार्टिसिपेंट्स सो दैट दे अंडरस्टैंड क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है कि आप वो अंदर फॉलो करें। कोई भी कैंटीन खुल जाता है, बट जब आप SRLM के लेवल पे कुछ ब्रांड डेवलपमेंट की बात करते हो, क्लस्टर डेवलपमेंट की बात करते हो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक SOP फॉलो करें एंड एक स्ट्रीमलाइंड वे में आप ये सब करते रहे। तो इसके लिए आप एक डेमो क्रिएट किया गया है। ये कैफ़े कुडुम्बश्री जो है, ये कुडुम्बश्री के अंदर का ब्रांड ही है, सो ये डेमो का भी हमने वही नाम चूज़ किया है। तो ये पूरा सेटअप जो है वो आपको एग्जैक्ट एक कैंटीन के रेप्लिका जैसे लगेगा। जैसे आप एंटर करते हैं, आपको पता है फ्रंट ऑफिस एक होता है, सो ये उसी का रेप्लिकेशन है फ्रंट ऑफिस का। यहाँ पे मेजरली आप एंटायर कैंटीन में एक 2-3 चीज़ों का आप इंफॉर्मेशन देखेंगे। 1, किस तरह का फैब्रिक यूज़ किया जाना है, जैसे ये बोर्ड्स में है, कौन से सेक्शन में किस तरह का फैब्रिक यूज़ किया जाता है, हर सेक्शन का क्या प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं वो आप उस IEC में पाएंगे, एंड क्या बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है हर कैंटीन के अंदर, तो आपको हर चीज़ का डाटा ट्रैक कर सके। इन्वेंट्री का, आपके कस्टमर्स किस प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा कर रहे हैं, किस तरह का कस्टमर ज़्यादा आ रहा है, कितना एवरेज सेल्स क्या हो रहे हैं, किस वीकेंड पे आपका ज़्यादा सेल हो रही है, वीकडेज़ पे हो रही है कि वीकेंड पे, क्या रीज़न्स है, वो सब ट्रैक करने का हमको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है। जैसे अगर मैं एक कैफ़े शुरू करना चाहता हूँ तो आप हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे? सो कुडुम्बश्री NRO के अंदर कैफ़े मेंटर का पूल हमने डेवलप किया, जो 2-3 बैकग्राउंड से आते हैं। एक है IHM का, जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का डिग्री लिया हो, एंड दूसरा जिसने फूड सर्विस का बिज़नेस किया है, एंड तीसरा हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स के कैडर से जो एंटरप्राइज नॉलेज को समझते हैं। सो हम कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं ये सारे कैडर्स को, एंड सबको एक पेज पे लेके आते हैं ताकि हर कैफ़े मेंटर एक लेवल का एक्सपर्टीज़ रखे। तो वो कम्युनिटी के अंदर के जो कैडर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं। ये नैनो बाज़ार है, ये कुडुम्बश्री के अंदर का एक कॉन्सेप्ट है। हर सुपरमार्केट या कोई भी कैंटीन में एक रैक कुडुम्बश्री के प्रोडक्ट्स के लिए डेडिकेटेडली मिलता है। तो ये सारे आप कुडुम्बश्री के ही प्रोडक्ट्स है, देख सकते हैं। यहाँ पे क्या अंदर से क्या डेकोर होना चाहिए जी, फूड पिक्चर, कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कहाँ पे विंडोज़ लगना है। ये आपका स्टोर रूम। जी, इसका भी डमी बनाए हैं, स्टोर की तरह कैसे ऑर्गेनाइज करोगे ये सब। सो इस पूरे सेटअप को हम एक गाइडेड टूर की तरह बना रहे ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी समझ सके हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हम हमेशा यहाँ पे रहते हैं ताकि एक्सप्लेन कर सके ये सारी चीज़ें। ये किचन हो गया। फिर यहाँ पे बेसिक इक्विपमेंट जो हर कैंटीन में होना है वो सब हमने लगाया। और यहाँ पे क्या स्टॉल्स लगे हुए हैं? जी, SVP करके एक प्रोग्राम है, एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स है कुडुम्बश्री के अंदर। वहाँ से जो प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के लिए प्रोग्राम्स रेलेवेंट है, वो सब इसी में वर्क कर रहे हैं। तो कैसे बेटर प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, उसका इंटरेक्शन भी होगा उनके साथ। एंड ये है अट्टापाडी करके एक एरिया है जो मिलेट्स का नंबर 1 प्रोडक्शन है। केरला का नंबर 1 मिलेट प्रोडक्शन अट्टापाडी से, ट्राइबल एरिया है। ये न्यूट्री मिलेट, ये भी मिलेट्स का ही है, त्रिशूर से है ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, या। हिस्ट्री ऑफ फूड। So in food enterprises, food safety plays a key role. Majorly we all know it only for the certification, but they have other programs also where they can support SRLMs in standardizing food streets, supplying machinery, and making better amenities in the food streets and all. We can listen from them. This is an initiative for promoting street food. There is the local cuisines. There is a street consisting of 10 to 15 shops. We select a street and we give registration or license for all those shops, and we provide training for them. And a third-party audit will be conducted in this, and as per the standards and their compliances and their schedule for compliances, we certify it as Clean Street Food Hub. This is an initiative, and there is another program going on, that is modernization of food street. We select the existing food street and we upgrade it like a modernization. In Kerala, we have selected 4 food streets in this program, and one is in Shangumugam,
and one is in Ernakulam, there is Kasturba Nagar, in Munnar, and also in Kozhikode. And we have all another programs like certifying the campus at Eat Right campus, schools as Eat Right schools. We have many programs. FSSA is doing a lot of programs like this, initiatives, FSSA initiatives. And for restaurants, we are doing hygiene rating. Based on their compliances and non-compliances, third-party audit will be conducted, and based on that, we give ratings. That is 1 to 5-star ratings will be given. So under the SVP program, we have developed cadres and we have trained them on business knowledge and administration. But many of times they will not be able to utilize it after the project period. But this is example of one of the CRPP groups who have created their own business out of the entrepreneurs that they promoted during the project period. So आप इनके अगर ये वाला फ्लो चार्ट देखेंगे, यहाँ पे 3 CRPP ग्रुप बिजनेसेस है, क्रिएटिव मार्केटर, साधिका कंसल्टेंसी, सेविका. सो ये उनका प्रोसेस है. उन्होंने जितने एंटरप्रेन्योर्स को प्रोजेक्ट पीरियड में प्रमोट किया, उन्हीं के ऊपर उन्होंने अपना एक बिज़नेस बनाया. वो एक मार्केटिंग ग्रुप बन गए. तो वो एग्रीगेट करते हैं प्रोडक्ट्स को एंड सप्लाई करते हैं डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स को. वन ऑफ द चैनल कुड बी द नैनो बाजार दैट वी हैव सीन इन द कैंटीन. इट कुड इवन बी द अदर मेलास. It could even be supermarkets and all. So these are the cadres who procured products from their entrepreneurs, and they are presenting it before us. So like we have different households making products, but to make it presentable is more challenging. What this CRPP group does is to reduce that gap of making the products more attractive. They will become that linkage between the producer and the branding agency. तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स को बेटर बनाते हैं. स्क्वाश बनाना सबको आता है, लेकिन उसको ऐसे पैकेज करके हमारे सामने प्रेजेंट करना रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए चैलेंजिंग है. वो काम को एड्रेस करते हैं ये ग्रुप्स. तो यहाँ पे हम 3 तरह का मॉडल्स डिस्प्ले कर रहे हैं. एक है कियोस्क मॉडल, सेकंड फूड कार्ट है, थर्ड आपके ट्राइबल लाइक ट्रेडिशनल हट है, तट्टकड़ा बोलते हैं मलयालम में. सो दीज आर द ट्रेडिशनल कुकिंग एरियाज ऑफ ट्राइबल्स. देखते हैं क्या है इनके पास तट्टकड़ा में. तो ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे? ये बना रहे हैं वनसुंदरी. सो बेसिकली जब यहाँ पे एक ग्रुप है आईफ्रम करके, उसका एस्टैब्लिशमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे फूड एंटरप्राइजेस काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे थे, लो रेवेन्यूज़ थे. तो उसको एड्रेस करने के लिए आईफ्रम का एक ग्रुप बना. सो ओवर द इयर्स उन्होंने बहुत सारे इंटरवेंशंस किया, सपोर्ट किया. सो उन्होंने एक इस अट्टापाडी ग्रुप के साथ एक जो इनिशिएटिव लिया है कि एक नया रेसिपी तैयार करना. इसको बोलते हैं वनसुंदरी. मैंने ये खाया है. ओके. कहाँ पे खाया पता है आपको? सरस में खाया होंगे. सरस में ही खाया है. सरस में जो भी गए सब खाए होंगे. और मतलब हमेशा जब भी जाता हूँ मैं सरस मेला में, आपके फूड कोर्ट में, ये मेरा फेवरेट डिश होता है. ग्रीन चिकन है ना, बेसिकली हर्बल चिकन है. हाँ, क्योंकि वन है तो वहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं. उनके ऑथेंटिक लीव्स को लेकर बनाते हैं along with meat. So basically ये सिर्फ फूड टेस्टिंग के लिए है. यहाँ पे क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बाहर से आए हैं तो हमने तरह तरह का जो केरला के ऑथेंटिक डिशेस है उसको रखे हैं यहाँ पे. बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. जो लोग आए हैं उनको जो एक क्लासिक ट्रेडिशनल फूड है केरला का, वो एक जगह टेस्ट करने को मिल जाएगा. हाँ. और बढ़िया केले के पत्ते में वनसुंदरी सर्व किया गया है, और इसमें आलू भी है, गाजर भी है, और चिकन को अच्छे से तवे पे ग्रीन मसाला के साथ में फ्राई किया गया है. अच्छा, काली मिर्च का जायका है और एक अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर भी है इसमें. आइए अब चलते हैं फूड कार्ट की ओर. फूड कार्ट में क्या है? ये क्या बना रहे हैं? This is small appam. Small appam. Small appam, unni appam. Unni appam. Unni appam. Rice, jaggery, coconut, coconuts. Okay, fries है, ghee, coconut oil. This right? ये बैटर है. batter. This boil आവുമ്പോൾ इसको कैसे खाते हैं? मीठे की तरह खाते हैं इसको? एज अ स्नैक खाते हैं? हाँ, स्नैक. एज अ स्नैक. हाँ.
कैसे पफ होता है? और बैटर 3 आवर्स फर्मेंटेशन मतलब इसका फर्मेंट करते हैं बैटर को। बैटर ईस्ट तो नहीं डालते ना? Yeast, baking powder no, yeast no. Just leave it for 3 hours. Only 3 hours. Banana. बनाना ये एकदम लाल हो गया ये। अब खाएं? स्पेशल എന്തോ പഴവങ്ങാടി the temple പഴവങ്ങാടി temple special ഉണ്ണിയപ്പം शबरीमला टेम्पल ऑफरिंग। वाह। Taste? सुपर Super. सुपर। एकदम बाहर से जो इसकी परत है एकदम कड़क है और अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी। Soft और spongy. बहुत बढ़िया बनाया गया, यही मज़ा आ गया। आपका कहीं पे फूड कियोस्क है ऐसा? आपका फूड कार्ट लगाते हैं कहीं पे आप बाहर? बाहर आपका स्टॉल है ये कहीं? സ്റ്റോൾ ഹമാര അതും എന്തോ പറയാനാ അതിന് ഹോം ഹോം होम ഹോം होम शेफ। ഹോം ഷെഫ് बहुत बढ़िया। इसमें में आपका कोकोनट का चंक्स भी है, ആ താങ്ക്സ് वेरी टेस्टी। स्वादिष्ट नाया स्वादिष्ट 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 माया भक्षणम। भूल गया സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം हैं? अरे, कैसे माया भक्षणम? सही बोला ना? സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം स्वादिष्ट माया भक्षणम याद है मुझे। अच्छा दीदी थैंक यू। नन्नी नन्नी और मेरा स्टॉल में स्टार्टिंग 16 आवर्स मैं इधर से कियोस्क का मॉडल के डिस्प्ले है। और मेरा देश एर्नाकुलम केरला कोचिन में कोचिन कलेक्ट्रेट के नीचे कियोस्क मिल है मेरे पास है। मैं इधर से आज वैरायटी जूस है, मैं P3 है, പിന്നെ फ्रूट्स खाने के लिए पीने के लिए और स्मॉल नींबू वाला पानी के आइटम है। ग्रेप सोडा है, ओनली ग्रेप मिकी में सोडा डाल करेगा। वो ओसी जूस है, उसी क्या होता है? ऑरेंज कैरेट। अच्छा ऑरेंज कैरेट उसी जूस। ओसी जूस मेरे को लगा ऑस्ट्रेलिया वाला ओसी तो नहीं है। ये वाला क्या Watermelon। P3 अंदर में जूस है। यार मिथुन अंदर मैं हाँ इसके अंदर में जूस है। जूस है P3 जूस है। P3 बोले तो P3 एंड पैशन फ्रूट पाइनएप्पल पपाया वेरी टेस्टी है मेरे साथ का। आपका फेवरेट जूस कौन सा है? मेरा फेवरेट P3 अच्छा एंड ओसी अच्छा, ग्रेप सोडा एक गैस का प्रॉब्लम है अच्छा खाना पीने का अच्छा। ये हाँ आपका नाम क्या है? अमृता है। अमृता। हाँ आप वहाँ भी आते हैं ना सरस दिल्ली में? हाँ नोएडा में आते हैं? नोएडा आता है। आपका स्टॉल बहुत फेमस रहता है, हाँ। मैं देखता हूँ। द ग्रेप सोडा है। ग्रेप सोडा हाँ ये आपका फेवरेट है? हाँ मेरा फेवरेट। खट्टा मीठा है। हाँ मीठा प्यार के है ना अच्छा रखो। वो नेचुरल फ्लेवर है, नो केमिकल। कैसा लगता है आपको अपना काम करके? मेरा खुश हैं आप? मेरा हैप्पी है। हैप्पी है ना? मेरा ये C5 नंबर से पूरा मेरा ट्रांस कम्युनिटी में असप में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो केरला का माता घर में असप से नहीं है। वो मेरा मेरा जॉब करना मरिया है। मरिया का ये 4 दिन के फर्स्ट में घर में बोलेगा मैं ट्रांसजेंडर है असप्ट है। वो बोला एक कुटुंबश्री फूड कोर्ट में जाएगा वीडियो, वो फूड कोर्ट में पूरा वीडियो फोटोस देखेगा। अम्मा मैं असप्ट से मेरा इस बार क्या है बोला ये मरिया है। मरिया का घर में आपा मारा भैया का असप्ट से फिर हैप्पी है, मैं बहुत हैप्पी। मतलब एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज हैप्पीनेस, है ना? जिस काम में खुशी मिले, आप खुश हैं, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा चीज़ खिला रहे हैं, वो भी खुश हैं, और क्या चाहिए? थैंक यू वैष्णवी जी। और साथ ही साथ कुटुंबश्री NRO का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे इंगेजिंग वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। साथ में एक छोटा सा यहाँ पे फूड वॉक भी किया और समझा जो अलग अलग मॉडल्स हैं। आपका ट्रैवल हट जो एक तट्टकड़ा लोकल स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस है वो लिया, जो फूड कार्ट है और फूड कियोस्क है, साथ में इतने सारे जो काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे लोकल फूड एंटरप्रेन्योर्स अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, इसके बारे में जानने को मिला। तो थैंक यू। और आपको भी काफ़ी थैंक यू है, आपने पैनल डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट किया और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिला
वो दोबारा दिख रहे थे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपके यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, अभी और एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिला और हमारे जितना भी हमारे एफर्ट्स गया इस एग्जीबिशन को डिज़ाइन करने में, वो कहीं तो और भी लोगों तक पहुँचे, उसके लिए थैंक यू सो मच। नन्ही। इधर से लेफ्ट साइड जाके एक बड़ा डैम है, नेयार डैम। डैम से नदी स्टार्टिंग होता है, सीधा अरब सागर में ज्वाइनिंग होता है। ये बारिश का टाइम इधर से पानी समुद्र जा रहे हैं, बाकी टाइम समुद्र से पानी इधर आ रहा है, इसके लिए बैक वाटर बोल रहे हैं। ये देखो, ये लैंड का लेवल तक बराबर पानी आएगा। अभी संगम बंद है 2 दिन का पहले, 4-5 दिन ऐसा है पानी। इसके बाद थोड़ा पानी बढ़िया होने के बाद संगम ओपन है, नदी समुद्र का संगम ओपनिंग है। ये 5 फीट 6 फीट पानी वापस समुद्र में जाएगा। फिर 4-5 दिन ऐसा है, फिर भी ऐसा है। इसके लिए बैक वाटर बोल रहे हैं, समुद्र से पानी इधर आ रहा है, इसके लिए बैक वाटर बोल रहे हैं। ये नदी के 2 साइड में मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंगो नहीं है मैंग्रोव। मैंग्रोव मालूम है ना, मैंग्रोव का फॉरेस्ट है। और हाथी का पत्थर है, नेचुरल है, कोई बनाएगा नहीं है। और मदर मेरी स्टैचू है। फ्लोटिंग कॉटेज है, फ्लोटिंग कॉटेज मीन्स पानी कितना आ गया तो ऊपर जा रहा है, पानी कम हो गया नीचे जा रहा है, ऐसा खाली फ्लोटिंग है, चलता नहीं है, खाली फ्लोटिंग है। 5 स्टार है। बीच है, बीच का डिफरेंट है ना, एक साइड सागर है, एक साइड नदी है, सेंटर में आते बालू पूरा गोल्ड कलर, इसके लिए गोल्डन सैंड बोर्ड है, पुआर गोल्डन सैंड बीच। ये है पुआर का, इतना है देखने के लिए। ये जो पूरा आपका टूर रहता है कितने देर का रहता है? हाँ, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा है। वो कन्याकुमारी जाने वाला 1.5 घंटा मैक्सिमम लेना है, उसको उधर जाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बराबर 1.5 घंटा में पूरा कवरिंग होता है, बीच में थोड़ा चाहिए तो 2 घंटा लेना तो अच्छा है। पूरा बाकी एरिया पूरा कवर करने के 1.5 घंटा बस, बीच में और टाइम चाहिए तो 2 घंटा लेना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लॉरेंस। लॉरेंस। लॉरेंस, कितने साल हो गए आपको बोटिंग करते हैं? इधर 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। हाँ। अच्छा है बिजनेस? हाँ, इधर ही हमारा एक INDCU CAG का साथ कुछ एक ही यूनियन है, यूनियन के साथ काम करते हैं। और यहाँ पे कौन सा फिश होता है बैक वाटर में? ये रेड स्नैपर, बड़ा साइज रेड स्नैपर है, टाइगर ब्राउन से केरला करीमीन है। इसका स्पेशल क्रैब है, क्रैब मड क्रैब है। वो मड क्रैब लाइव में बना के खाना चाहिए, इसके लिए तो बहुत टेस्टी। इसके लिए तो ज़्यादा लोग दूर से इधर आ रहे हैं खाना खाने के लिए। ये कोवलम आलपी सभी जगह में वो मिलेगा, वो फ्रीजर में रखने के बाद देगा। हमारा इधर का फ्लोटिंग कॉटेज, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में पावर फ्रीजर कुछ नहीं है, इसके लिए तो फ्रेश मिलेगा पूरा मछली। ये बिल्कुल मैंग्रोव फॉरेस्ट से होते हुए हमारा बोट निकल रहा है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है दोनों तरफ। भैया ये फ्रूट देखो, ये वाला ना, ये खाने का नहीं है, विथ शुगर के साथ खाएगा मर जाएगा, उतना पॉइसन है। विथ क्या बोलते हैं इसको? ये इधर केरला मलयालम में कंडक्या बोल रहे, ओदलंगा बोल रहे, चातंगा बोल रहे। हाँ, ये फ्रूट है, वो खाने का नहीं है, वो पॉइसन है। ये विथ शुगर के साथ खाएगा तो आदमी लोग मर जाएगा, इतना पॉइसन है। अरे इसको रोक दो, बस 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 बस। थम जा। थांबा। आपका नाम क्या है? मेरे नाम सेल्वराज। आपका नाम क्या है? अनुभव। अनुभव क्या करता है? मैं खाना खाता है। नहीं, आप करता क्या है? यही करता है मैं। क्या ये करता है? हाँ, जगह जाके खाता है। हाँ। Looking at the coconut, he can figure out which one has मोटा मलाई, which one has पतला मलाई, which one has more water. पतला मलाई। पतला मलाई। मलाई कैसे निकलेगी? मलाई में काट के देगा भैया। एक और दो मोटा मलाई। पतला मलाई। मीठा पानी है। शुरू होते खत्म हो गया। मोटा मलाई। मोटा मलाई। मोटा मलाई। ये किस काम में आएगा बाद में? एक जगह सूखने के ऊपर जलाने के लगे। पानी वाला दे दीजिए। पतली मलाई। इसमें कुछ निकलेगा? निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा। आपका नसीब अच्छे तो निकलेगा।
अब सनसेट का नज़ारा लिया जाएगा। बेसिकली जब ताड़ी और नीरा का जब फ्लोटिंग होता है उसके बाद ये फ्रूटिंग स्टेज में आता है। इसके अंदर इसका सीड होता है, तो सीड के पूरे फाइनल स्टेज में जाने के पहले वो पल्प में रहता है। उस पल्प को हम लोग एज ए फ्रूट यूज करते हैं और उसी को लोकल लैंग्वेज में, अगर मैं जैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ तो इसको हम लोगों के यहाँ लोकल लैंग्वेज में ताड़ कोवा बोलते हैं। और ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में जब चैत का महीना होता है वहाँ पे मई, अप्रैल टू मई का जो फेज होता है उस समय में इसका सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। लेकिन साउथ में मैंने देखा है कि चेन्नई में और केरला में, इवन आंध्रा में ये पूरे ईयर इसका सेल होते रहता है ये हमेशा। और पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये, काफ़ी मेडिसिनल इसका वैल्यू है। और सेकेंड लेवल पे जब ये पूरा पक जाएगा, इसके अंदर का सीड जब पूरा कोट हो, सॉलिड हो जाएगा वो, तो इसके पल्प को भी यूज किया जाता है। उस पल्प को निकाला जाता है और उसको डिफरेंट डिशेज उससे बनाए जाते हैं। और जो उसका सीड होता है उसको जर्मिनेट करने के लिए एक जगह पे थोड़ा राख वगैरह डाल करके, मिट्टी डाल करके उसको डाला जाता है। उसके बाद उसमें से जो फ्रूटिंग होता है इनिशियल स्टेज का, आफ्टर 2 to 3 मंथ, तो वो स्टेम जो अंदर से निकलता है वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन उसको उबाल करके भी लोग खाते हैं। उसको वहाँ पड़म बोलते हैं। बेसिकली ये साउथ बिहार में ज़्यादा इसको, जैसे पटना में, गया, नालंदा, जहानाबाद, मसौड़ी वगैरह रेलवे स्टेशन में आपको बहुत मिलेगा। वहाँ पे इतना लंबा स्टिकी साइज का होता है, स्टिक टाइप का, और उसको लोग काट करके बॉईल करके उसको खाते हैं हल्का नमक लगा करके। तो ताड़ का पेड़ में इतना ज़्यादा गुण है कि उसको हम लोग हर लेवल पे यूज कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है और तो खाया जा सकता है इसको। तो ताड़ का फल बोलेंगे इसको? हाँ, इसको ताड़ का फल बोलेंगे, जो प्राइमरी स्टेज का है। तो सिर्फ यही खाने वाला है बस? बस इतना ही है? कुछ कुछ है, इसको खाने के बाद पान वगैरह, कचौली वगैरह नहीं खाना चाहिए। अच्छा, और क्या नहीं खाना चाहिए? जनरली यही रिएक्ट करता है थोड़ा उस तरह के नेचर से, एकदम जेली की तरह है। जेली होता है, जेली। हाँ, जेली। लग रहा है जेली खा रहे हैं, और है बहुत मीठा। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आपको ये खाने का मज़ा बीच पे ही आता है? जैसे मूंगफली खाने का मज़ा किसी गार्डन में, अब आपका जो माहौल होता है वो फ्लेवर ऐड करता है। खट्टा, मीठा, तीखा, तीनों ही जायका है। बस यही, ये कलर ही पट नहीं है ना। वो फिल्म में देख तो